দেখো জিএসটি আমরা তো ট্যাক্সে করেছিলাম, অ্যাকাউন্টসে আবার জিএসটি একবার করানো হচ্ছে, আজকে রিভিশন ক্লাস। তাই জন্য রিভিশনে অনুযায়ী সব কিছু যত হচ্ছে উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার করানোর চেষ্টা করছি। গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স, জিএসটি ফুল ফর্ম। জিএসটি ইজ আ কম্প্রিহেন্সিভ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স। কম্প্রিহেন্সিভ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, দেখো ওর ফিচার্সের মধ্যেও প্রথমে আমি দুটো একসাথে ডেফিনেশন আর ফিচার্স থেকেই বের হয়ে দেখে নাও। কম্প্রিহেন্সিভ মানে কি হচ্ছে? কম্প্রিহেন্সিভ মানে তো সব একসাথে সাম টোটাল, ঠিক আছে? তো সব কিছু মিলিয়ে যেটাকে বলা হয় ওটা কম্প্রিহেন্সিভ বলা হয়, ঠিক আছে? তো তো কম্প্রিহেন্সিভ ওয়ার্ডটা মিনস হচ্ছে একসাথে অনেক কটা যেগুলো থাকে কোনো জিনিসের মধ্যে থাকে, তাহলে ওটা কম্প্রিহেন্সিভ ওয়ার্ড ইউজ হয়। তাহলে কম্প্রিহেন্সিভ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স মানে এর আগে জিএসটি ইন্ট্রোডিউস করার আগে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স অনেক ধরনের হতো। স্টেটের কিছু ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স হতো, কিছু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স হতো। জিএসটি আসার পরে যত ধরনের ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, আমি এর আগে একদম ফার্স্ট চ্যাপ্টারে ডাইরেক্ট ট্যাক্স আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়েছিলাম। ডাইরেক্ট ট্যাক্স কি হচ্ছে? impose and charge on same person, fall on same person. Indirect tax এর কি হচ্ছে? impose and impact fall on different person. মানে সেলার যদি ট্যাক্স পে করছে কিন্তু আলটিমেটলি ও কাস্টমার থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে, মানে গভর্নমেন্টের রেজিস্টারের মধ্যে সেলারের নাম আছে, তাহলে ইম্পোজ কার উপরে হলো? সেলারের উপরে হলো ট্যাক্সটা, বাট তার পেমেন্ট কে করলো? কাস্টমার করলো। তাহলে ইমপ্যাক্ট কার উপরে করলো? পকেটে, কার পকেটে পড়লো? কাস্টমার পকেটে। তো যেখানটা এটাকে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স বলা হয়, যেখানটা ইমপ্যাক্ট আর ইম্পোজিশন দুটো আলাদা আলাদা লোকের উপর হয়, সেটা আমরা ডিসকাস অলরেডি করে নিয়েছি। তাহলে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স আগে যে সিস্টেম ছিল ওর মধ্যে অনেক কটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স থাকতো, মানে একটা লোক ওই দিক থেকে কাস্টম থেকে তোমার সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স, ভ্যাট আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ট্যাক্স পে করতো একটা প্রোডাক্টের মধ্যে। এবার জিএসটি আসার পরে কি হচ্ছে? ওই সব ট্যাক্স কমপ্লিট করে কিছু এক দুটো প্রোডাক্ট বা প্রোডাক্টের বিষয়টাতে আলাদা, সেটা এক্সেপশনাল কেস আছে, পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট, অ্যালকোহল, সেটা এখনো মানে ওই হিসাবে জিএসটির মধ্যে ওটা এখনো আসেনি। কিন্তু ওর ছাড়া বাদ বাকি যত প্রোডাক্ট বা বাকি যা জিনিস আছে সেটার মধ্যে কি হচ্ছে? যত ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ছিল সেটা সাবমার্জ হয়ে কি হয়ে গেল? ওয়ান ট্যাক্স হয়ে গেল। জিএসটি ইজ আ ওয়ান ট্যাক্স, ঠিক আছে? তো ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান নেশন ওয়ান ট্যাক্স বলেছিলাম, ওই পলিসি থেকে এসেছে। তো কম্প্রিহেন্সিভ ওয়ার্ডটা মানে বুঝতে পারলে, তাহলে ফিচার্স দিয়ে কম্প্রিহেন্সিভ বুঝে গেছো, এতেও হয়ে গেল। ইট ইজ লিভাইড মানে চার্জ at the prescribed rate। দেখো ডিফারেন্ট না স্লট আছে, ওর মধ্যে ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট বলা হচ্ছে। কোন প্রোডাক্টের মধ্যে 5%, কোন মধ্যে 18%। তো যে প্রেসক্রাইব রেটে যে প্রোডাক্টটা পড়বে সেই হিসাবে চার্জ করা হবে। তো চার্জ এট আ প্রেসক্রাইব রেট ইচ টাইম দ্য সাপ্লাই মেড অফ গুডস অর সার্ভিস অর বোথ, ঠিক আছে? গুডস এর মধ্যেও পড়বে না, গুডস এন্ড সার্ভিসের মধ্যেও জিএসটি অ্যাপ্লিকেবল হয়, ঠিক আছে? তো सप्लाई में यहाँ पर सेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, सप्लाई इंपॉर्टेंट है। जब सप्लाई होगा उस पर चार्ज होगा बाय द टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी पे वही कर सकता है या कलेक्ट वही कर सकता है जो जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड है। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, इसका एडवांटेज क्या है? कॉमन नेशनल मार्केट। आगे की हो तो একটাই প্রোডাক্ট বেঙ্গলে আলাদা রেটে, পাঞ্জাবে আলাদা রেটে, ইউপিতে আলাদা রেটে। কেন? সবাই লোক স্টেট আলাদা আলাদা জিএসটি রেট, ট্যাক্সে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সে আলাদা আলাদা রেট চার্জ করতে। আজকের ডেটেই তোমরা দেখে নাও, তোমরা দেখবে গোল্ড নিউজ রেট, যখন নিউজ দেখবে না তখন দেখবে গোল্ডের রেট মুম্বাই দিল্লি এইভাবে দেখাবে, পেট্রোলে যখন দেখাবে তখন দেখবে কলকাতা এত টাকা যাচ্ছে, মুম্বাই পেট্রোলের দাম এত যাচ্ছে। তাহলে এখনো মধ্যে যে যার মধ্যে জিএসটি অ্যাপ্লিকেবল নেই তার রেট একটাই নেশনের মধ্যে ডিফারেন্ট আছে। तुम यूपी में जाओगे तो पेट्रोल अलग दाम में मिलेगा, तुम असम में जाओगे अलग दाम में मिलेगा, तुम कलकत्ता में अलग दाम में मिलेगा, मुंबई में अलग दाम में मिलेगा। क्यों अभी भी ऐसा है? तो ये दिखाता है ये पुराना सिस्टम में चल रहा है अभी भी, ये जीएसटी के अंडर में नहीं आया है। तो जब इसके पहले जीएसटी के अंडर नहीं आने के चलते बाकी सब तो कुछ अभी तो कुछ मिनिमम कुछ प्रोडक्ट कुछ हो गया, बाकी सब तो जीएसटी के अंडर में आ गया है। तो जीएसटी के अंडर में आने से क्या होता है कि पूरा होल नेशन में एक ही रेट में माल होगा, ठीक है? तो मतलब उसका रेट ऑफ टैक्स उसका सेम रहेगा। तो इसीलिए ये बोला कॉमन नेशनल मार्केट। आगे क्या था कि अलग अलग, जैसे अभी पेट्रोल में कॉमन नेशनल मार्केट नहीं है। तुम सोचो यहाँ पर सोचो रेट में ज्यादा, तुम मुंबई में सेम रेट में नहीं मिलेगा, असम में सेम रेट में नहीं मिलेगा, ठीक है? रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट, এটা এদিকেও আছে লাস্টে, ঠিক আছে? তো ডাজ নট হ্যাভ ট্যাক্স অন ট্যাক্স।
आगे क्या था कि कोई प्रोडक्ट बना, पहले उसके ऊपर एक्साइज, इंडिया में अगर बना मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो एक्साइज, ठीक है, तो फिर CST, फिर जो वैल्यू आया उस पर फिर वैट स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता था। इसका मतलब क्या, जो जिस पे ऑलरेडी टैक्स, उसका तो वैल्यू में वो पुराना टैक्स, जैसे 10 रुपये का चीज़ है उसमें 1 रुपया अगर लग गया तो तुम्हारा एक्साइज ड्यूटी, तो अब नेक्स्ट में जो तुम CST चार्ज होगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो 11 रुपये पे चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो फिर वैल्यू एडेड टैक्स में उसमें, तो इस तरह से क्या हो रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चूंकि इनपुट का साथ आउटपुट और इनपुट में एडजस्टमेंट होता है, आउटपुट टैक्स जो भी क्रेडिट हुआ है और इनपुट टैक्स जो हो रहा है उसके साथ तुम्हारा एडजस्टमेंट होगा। वो हम लोग नेक्स्ट में एडजस्टमेंट कैसे होता है पहले भी करा दिए थे, आज भी रिविजन करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर तुम पे किए हो, सोचो कोई चीज़ खरीदने में, इस मोबाइल को हम खरीदे, मोबाइल में हम 3000 रुपया पे किए टैक्स, 2000 रुपये टैक्स पे किए, फिर हम इसको जब बेचे उसमें, तो उसमें सबको 3000 रुपया मिला, टैक्स कलेक्ट किए। तो अब हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी 2000 पे कर चुके थे, हम कलेक्ट कितना किए हैं, 3000 रुपया। कस्टमर को जब हम बेचे तो हम कितना कलेक्ट किए, 3000 रुपया कलेक्ट किए। तो अब क्या हो रहा है, 1000 रुपये जो एक्स्ट्रा हम जब प्रॉफिट ऐड करके उसको बेच रहे थे 1000, उसके चलते टैक्स इंक्रीज कर गया। अब हम गवर्नमेंट को सिर्फ 2000 देंगे, क्यों, क्योंकि 3000 में से ऑलरेडी 2000 हम पे कर चुके हैं। तो अब हमको देना कितना है गवर्नमेंट को, 1000 रुपया। तो आउटपुट कलेक्ट कितना हुआ, तो 3000, इनपुट खरीदते वक्त हम टैक्स कितना पे कर चुके थे, 2000 रुपया। तो मेरा 1000 रुपया जो हो रहा है यही अब हम पे करेंगे। तो क्या डबल टैक्स दिए हम, 3000 और 2000, 5000 दिए क्या, नहीं दिए। तो टैक्स ऑन टैक्स नहीं चार्ज हो रहा, समझ में आया। तो टैक्स ऑन टैक्स में डबल टैक्सेशन नहीं चार्ज होना को बोलता है कैस्केड, चार्ज होना को कैस्केडिंग इफेक्ट बोलता है, नहीं होना को ये बोला है कि रिमूव, हटा दिया। तो GST आने के बाद टैक्स ऑन टैक्स इसके चलते क्या, दाम का जो प्राइस था वो बहुत हाई हो जाता था, अब वो नहीं होता है, ठीक है। तो बोलो समझ में आया। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को इजी कर दिया, ठीक है। तो अब जो भी रजिस्टर्ड डीलर है उसको 10 तरह का टैक्स का हिसाब रखना नहीं पड़ता है, अब सबको GST है, उसी के अंडर में सबका तुम्हारा प्लान में काम हो जाएगा। छोटा छोटा जो यही है उन लोग के लिए भी सिस्टम बनाया GST, जब तुम लोग कॉलेज में पढ़ोगे बहुत वैरायटी, कैसे क्या मोदी वाला भी हर चीज़ में तुम्हारा क्या GST नहीं, उसका लिए एक अलग प्लान है, ठीक है। ज्वेलरी वाला का अलग का है, फिर तुम्हारा क्या नाम है, बाकी सब चीज़ प्रोडक्ट के हिसाब से। तो इतना सुंदर से किया गया है कि GST करने के बाद बहुत सारा जो पहले आदमी क्या था, टैक्स का डर से, इतना वैरायटी ऑफ टैक्स कौन समझाएगा, कितना अकाउंटेंट रखेगा, इसके चलते क्या हो रहा था कि टैक्स कोई पे ही नहीं करता था, रजिस्टर्ड नहीं करता था। लेकिन GST आने के बाद सब कुछ रजिस्टर्ड किया, क्योंकि उसका फैसिलिटी भी उसको मिलता है, ठीक है। क्योंकि तुम अगर यदि तुम्हारा इनपुट टैक्स का क्रेडिट चाहते हो तो तुमको रजिस्टर्ड करना होगा, जो भी हो। तो ये बिजनेस को ईजी कर दिया GST आने का। सिंप्लीफाई कॉम्प्लायंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, वही बात अभी कंटिन्यू, सिंप्लीफाई कर दिया। आगे क्या था, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत था, कॉम्प्लायंस माने कि इतना तरह का अलग अलग टैक्स था, सबका नियम जानो, ये जानो, तुम कंफ्यूज हो रही थी, ठीक है। तो अभी बहुत इजी वे में कर दिया है, ठीक है। सब ऑनलाइन भी कर दिया है, पेमेंट करने का सिस्टम भी इजी हो गया। बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स, आगे क्या था, इफेक्टिव नहीं था, क्यों, क्योंकि आधा चीज टैक्स का कलेक्शन का जो होता है, बिल पेमेंट ये बना, अभी जो हो रहा है, जो पेमेंट सिस्टम है, कलेक्शन का जो सिस्टम है, वो बहुत ऑनलाइन होने के बाद बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट, अट्रैक्टिंग FDI, FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका पहले हम बिजनेस स्टडीज में भी किए थे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। आगे आपके ना सोचो कोई बाहर से आया है, आपके देख रहा है कि हम एक देश इंडिया में इंटर किए, बोले भाई हम इधर माल अपना बेचना चाहते हैं, बोला इस दर पे इतना रुपया टैक्स लगेगा, ठीक है। वहाँ पर जाके दूसरा, यूपी के बाद पंजाब गया दूसरा रेट, फिर गया मुंबई दूसरा रेट, फिर कोलकाता आया दूसरा रेट। बोले कि हम एक देश में घूम रहे कि बहुत सारे देश में घूम रहे हैं, बात समझ में आया। क्योंकि सब तो अपना अपना एक सिस्टम लेके चल रहा है, सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में अपना अपना सिस्टम है, सेंट्रल अलग चार्ज कर रहा है, स्टेट अलग चार्ज कर रहा है। वो लोग कंफ्यूज हो गए कि हम एक चीज पे इतना जगह पे अलग अलग सिस्टम समझेंगे, सिस्टम समझते समझते तो मेरा 1 साल 2 साल लग जाएगा, बात समझ में आया। तो इस पे GST आने के बाद हो चुकी, सब पूरा कंट्री में एक ही चीज एप्लीकेबल है, सब जगह सेम रूल है। तो अब आदमी लोग कोई भी बाहर का जो भी है, जो इंडिया बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए वो ईज टू बिजनेस हो गया था, तब वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, इसलिए अट्रैक्ट FDI बोला गया GST आने का। अपलिफ्टिंग GDP माने होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्री एक पर्टिकुलर ईयर में जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है,
उस देश का वो जीडीपी बोलता है। देखा हम लोग जीडीपी 5th पोजीशन में है बोलता है, हम लोग कुछ साल बाद बोला कि 3rd पोजीशन में। जीडीपी से कोई देश का इनकम स्ट्रक्चर नहीं होता। हम लोग कंज्यूमर के हिसाब से इतना बड़ा संख्या, हम लोग का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन था, तो अब वो फर्स्ट लार्जेस्ट में भी आ गया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इतना सारा प्रोडक्शन होता था, पहले आदमी टैक्स के अंडर में रखता ही नहीं था। तो देखना पहले बिलिंग बहुत कम होता था, नॉन बिलिंग वो ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होता था। आज हर चीज़ का बिलिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीएसटी आने के बाद जीएसटी नंबर लगना होगा, रजिस्टर करना होगा। पहले भी रजिस्ट्रेशन था, लेकिन चूंकि कॉम्प्लाइंस इतना था ना, इतना प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटीज था, आदमी नहीं जाना चाहता था। अब इजी हो गया, ऑनलाइन हो गया। तो इसके आने के बाद क्या सब कोई रजिस्टर किया, मतलब बोले ना कि रजिस्टर्ड होने से तो कैलकुलेशन होगा ना, रजिस्टर्ड अगर हुआ तो कैलकुलेशन होगा। तो आगे क्या था, बाइक का कोई लाइसेंस नहीं बनाता था, तो इसे पूछता कितना जन गाड़ी चलाने वाला है, तो बोले गाड़ी। आज सबको लाइसेंस जरूरी है, सामने कैमरा लेके आए, कैमरा जैसे कैसे नाम अपने लाइसेंस दे करते वहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, अब रजिस्टर्ड जैसे से हो रहा है, तो पता चला कि इतना पॉपुलेशन जिन लोग ओवर एज है उन लोग अभी भी बाइक चला रहा है। तो पहले दूसरा देश में क्या होता है, सब कुछ रजिस्टर्ड होता है ना, तो एक पर्टिकुलर ईयर के बाद, एज के बाद उससे छीन लिया जाता है उसका लाइसेंस कि आप भाई तुम्हारा एज नहीं रहा गाड़ी चलाने का, ठीक है। तो क्या था, कंट्रोल में रहता है सब कुछ, कौन क्या कर रहा था। तो उसी तरह जीएसटी में सब रजिस्टर होने के बाद क्या हुआ, कौन कितना प्रोडक्ट बनाया, ये सब गवर्नमेंट के खाता में आ गया। जो पहले भी प्रोडक्शन होता था लेकिन उस तरह से शो नहीं किया जाता था। अब क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है तो शो। जैसे पहले देखो बच्चा लोग केस में देखो, पहले भी पॉपुलेशन का पहला पॉपुलेशन तो आधा से ज्यादा का जन्म कार्ड ही नहीं था, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल में पहले ही नहीं होता था, ठीक है। तो अब क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, सबको बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। ये तो इससे क्या हो रहा है, पता चला पॉपुलेशन का और कैलकुलेशन इजी हो रहा है। पहले तो कैलकुलेशन इजी नहीं, अदरवाइज तो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता था। तो जितना डॉक्यूमेंटेशन होगा उतना कैलकुलेशन इजी होता है, कैलकुलेशन में नंबर्स बढ़ता है। तो जीएसटी आने के बाद क्या हो रहा है, सबको रजिस्टर्ड हो गया, सबका नाम सब अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करने का क्या हो रहा है, कौन कितना प्रोडक्शन किया है ये पता चल जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे जीडीपी अपने आप इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी। पहले कैश इकोनॉमी चलता था, कैश में सब डील करता था, बिलिंग तो छोड़ के। बोला ना कि पहले का जो सीए था उसका काम था कि देखता था, देख के वो चेक करता था, अच्छा आपका ये चीज़ मिल नहीं रहा है, आपको इसका बिल बनाने का पैसे लेता था, ठीक है। तो उसका मेन काम था कि बिल का जो चीज़ उसको दिखाना है, कोई चीज़ मैच नहीं। कैश ट्रांजेक्शन बहुत होता है। अभी क्या हो रहा है, सब ऑनलाइन सिस्टम आ गया, जीएसटी में रजिस्टर किया तो ऑनलाइन का वो शो करना है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सब कैश इकोनॉमी धीरे धीरे इंडिया में। आजकल तो कुछ का भी लेते हो तो बिना उसको अभी ऐसे कैसे स्कैन कर, ठीक है। तो इस पे दो तरह का इफेक्ट एक साथ ही पड़ा। एक तो जीएसटी के चलते है, क्योंकि जीएसटी के चलते जो बड़ा जितना छोटा बड़ा वो जो भी है सबको ट्रांजेक्शन अपना दिखाना पड़ता था, ठीक है। तो ये एक चीज़ है रीजन। अब इसका फीचर्स में पहला कॉम्प्रिहेंसिव समझ में आया। इट कैन बी कलेक्टेड चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। क्या कौन पे करेगा, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। कलेक्ट भी करेगा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, पे भी करेगा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। यानी तुम जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो तो तुम जीएसटी के अंडर में फैसिलिटी नहीं पाओगे। सोचो हम एक माल खरीदे, 100 फोन खरीदो, सब में 2000 करके, तो हम टैक्स तो इतना सारा दिए, ठीक है। तो अब लेकिन हम उसको, हम मेरा खुद का बिलिंग, मेरा जो दुकान का उसका जीएसटी रजिस्टर नहीं, हम जब बेचेंगे तो हम टैक्स कलेक्ट करने के लिए हमको तो जीएसटी नंबर चाहिए, वो नहीं रहेगा तो हम जो पेमेंट अगर हम यदि किए हैं तो उसका हमको कलेक्शन का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और समझ में आया। तो ये सब चीज़ हमको देखना होगा कि जो रजिस्टर्ड डीलर है सिर्फ उसी को ही ये फैसिलिटी मिलेगा। अगर मतलब अगर आपने रजिस्टर नहीं किया होगा तो हमको इनपुट टैक्स जो माइनस हमको वहाँ पर भी 2000 दे, प्लस पेमेंट रिसीव करते समय जो टैक्स कलेक्ट किया वो 3000 रुपया को हमको देना होगा, डबल टैक्स देना होगा। अच्छा, इसलिए रजिस्टर करना जरूरी है। रजिस्टर नहीं किया तुम इसका बेनिफिट नहीं पाओगे ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इनपुट टैक्स क्रेडिट का तुमको बेनिफिट लेना है तो तुमको रजिस्टर करना ही होगा। नेक्स्ट, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन, जितना वैल्यू एडिशन होगा, जैसे हम बोले थे ना, खरीदते समय हम 10 का मोबाइल खरीदे तो 2000 रुपये टैक्स दिए थे, उसको अब हम बेचेंगे तो उसको 15 में बेचे तो 15 पे फिर सेम रेट चार्ज करेंगे तो उसका ज़्यादा परसेंटेज चार्ज होगा। 3000 रुपये आया तो वो जो 3000 रुपये 1000 रुपये जो एक्स्ट्रा है बस उसी के ऊपर टैक्स लगेगा ना हमको तो उसी को देना है, पेमेंट करना फाइनली आउटपुट माइनस। तो वैल्यू जितना ऐड किया था उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वही टैक्स पे करता है, पूरा स्टार्टिंग टू नहीं। क्योंकि अगर 2000 माइनस नहीं होता तो डबल टैक्सेशन हो जाता। लेकिन हम जो 3000 कलेक्ट किए तो उसमें से 2000 माइनस करते
तो 1000 रुपया क्या होता है, जितना मैं एक्स्ट्रा दाम में बेचे उस पे ना अगर हम 10,000 का फिर कॉस्ट लगते तो मेरा 2,000 रुपया होता, तो 20%। लेकिन हम 15,000 रुपया में उसको बेच रहे तो 15,000 का 20% कितना होता है, 3,000। तो 3,000 रुपया हम रिसीव किए कस्टमर से, हम खरीदते वक्त पेमेंट कितना किए थे, 2,000। तो 3,000 माइनस 2,000, 1,000 रुपया को गवर्नमेंट को फिर पे करना होगा। तो 2,000 रुपये स्टार्टिंग में खरीदते वक्त पेमेंट किए थे, बेचते वक्त कलेक्ट किए 3,000, लेकिन पेमेंट करेंगे 1,000। तो 2,000 प्लस 1,000 टोटल कितना हुआ, 3,000। 2,000 प्लस 1,000 3,000। तो अल्टीमेटली देखो जो कस्टमर से हम कलेक्ट किए थे, यानी मेरा जो पेमेंट हुआ है वो सारा कस्टमर ही पे किया, यानी इम्पोज मेरे ऊपर हुआ लेकिन इम्पैक्ट किसके ऊपर, पॉकेट में गया, कस्टमर। ठीक है, तो लेकिन वैल्यू एडिशन पे उसको टैक्स पे हम पे किए। ठीक है, तो नेक्स्ट इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, तो कहाँ पहुंच रहा है, कौन सा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हो रहा है डेस्टिनेशन जहाँ पर रीच करेगा उसके ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी कौन गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, किसका है, पहले बोला कि जो मान सप्लायर है कि जो रिसीवर है, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कहाँ पर डेस्टिनेशन है टैक्स, जैसे यूपी में जा रहा है तो यूपी का जो गवर्नमेंट है उसके अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट तुम लोग को सिखाए हैं सीजीएसटी एसजीएसटी। तो एसजीएसटी कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट कौन होगा, जो स्टेट में डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इट इज सप्लाई बेस्ड टैक्स। ठीक है, तो सेल्स नहीं, सप्लाई बेस्ड। ठीक है, अगर हम एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में अपना भेज रहे हैं तो वो तो सेल नहीं कर रहे, लेकिन अपना ही दूसरा डिपार्टमेंट भेज रहे हैं तो भी उसको जीएसटी उसका कैंसिल, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सप्लाई बेस है, सेल बेस नहीं। सप्लाई, अगर सप्लाई हुआ है, सप्लाई के कैटेगरी में आता है, सेल सप्लाई की कैटेगरी में आता है, लेकिन सिर्फ सेल नहीं, और भी बहुत कुछ है ना। एक डिपार्टमेंट कोलकाता पर ब्रांच बोल रहा है कि बर्धमान वाला ब्रांच क्या আমাকে এত माल पाठिए दाओ, तो वहां पर तो अपना ही 2 ब्रांच में भेज रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सप्लाई तो हो रहा है, वहां सेल नहीं हुआ, लेकिन तब भी जीएसटी का बनता है। ठीक है, तो इफ इनपुट जीएसटी क्रेडिटेड इज अलाउड इट इज एन एसेट्स। इनपुट जीएसटी देखो अकाउंट्स में काम में आएगा, इनपुट जीएसटी की जगह बचा हुआ है तो वो बैलेंस शीट में कहाँ लिखाओगे, एसेट्स में लिखाओगे। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में अगर तुमको कोई पैसा कलेक्ट किए हो तो इनपुट तुमको माइनस करने में हेल्प करेगा। तो जो तुम्हारा लिए बेनिफिट होता है, जो भी बेनिफिशियल चीज होता है वो क्या होता है, एसेट्स होता है। तो इनपुट सोचो हम 2,000 रुपये जो टैक्स पे किए थे तो वो मेरे लिए एसेट्स बना हुआ था। अगला साल हम जब बेचे 3,000 रुपये को मिला तो हम 3,000 से वो 2,000 को माइनस पे 1,000 पे किए, तो वो 2,000 मेरा हेल्प किया ना टैक्स बचाने में, पैसा पे बचाने में, तो वो मेरा एसेट्स बना रहता है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मेरे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो इनपुट टैक्स लायबिलिटी, इनपुट माने जो खरीदते वक्त हम लोग टैक्स पे करते हैं उसको इनपुट टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। आउटपुट टैक्स मतलब होता है जब हम बेचते वक्त जो टैक्स कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, वो मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होता है। क्लियर है, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मेरा क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी वर्ड डी बोलते हैं लायबिलिटी। इनपुट टैक्स क्या होता है, मेरा एसेट्स होता है। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट तो समझा ही दिए थे। ठीक है, देखो आप बोले सर जीएसटी क्या सब गुड्स में क्या सेम रेट में चार्ज होता है, नहीं। जीएसटी का जो रेट्स है उसको बोला है ग्रुप इनटू 5 कैटेगरी। उसका 5 कैटेगरी क्या है, कुछ प्रोडक्ट 0% के रेट में रखा गया है, कुछ प्रोडक्ट को 5% वाला रेट में रखा गया है, कुछ प्रोडक्ट को 12% के रेट में रखा गया है, कुछ प्रोडक्ट को 18% में रखा गया है, कुछ प्रोडक्ट को 28%। ये 5 तरह का स्लैब बनाया गया है जीएसटी में। ठीक है, तो अब तुम लोग नेक्स्ट टाइम करोगे तो तुम लोग देखोगे क्या, अधिकतर में तुम लोग 18% देखते हो, क्योंकि तुम लोग रेस्टोरेंट में खाते हो, तुम लोग तो 18% तुमको देखेगा। उसमें भी 2 कैटेगरी है कि सीजीएसटी है, जीएसटी या आईजीएसटी जो भी होगा, ये सब तुम दोगे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट इस स्लैब में ज़्यादा आता है। लग्जरियस प्रोडक्ट में 28% आता है। ठीक है, तो अब 0% जीएसटी और 5% 12% जो हो रहा है ये भी कैटेगरी है कुछ प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो जो तुम लोग कॉलेज में जब जाओगे तो ये सारा डिस्क्रिप्शन था। अभी तुम लोग को मेनली याद रखना है इजी वे में कितना कैटेगरी ऑफ रेट होता है, 5 क्या क्या, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। एमसीक्यू में अगर किसी 1% रेट डिफरेंट दिया होगा वो नहीं है, तो याद रखना क्या है, क्या क्या रेट का जीएसटी में आता है। स्लैब कौन कौन सा रेट का है, 0, 5, 12, 18, 28। क्लियर। देखो इंटरस्टेट सप्लाई मींस क्या होता है, इंटरस्टेट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ विद इन सेम स्टेट। स्टेट मींस कि जो राज्य के अंदर में ही तुम्हारा राज्यের মধ্যে যদি सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस হয় তাকে ওইটাকে বলা হয় इंटरस्टेट। सिटी नहीं, राज्य के अंदर। ठीक है, वेस्ट बंगाल क्या हो रहा है, स्टेट हो रहा है।
तो उसके अंदर अब तुम लोग का जिसका बेसिक नॉलेज ये नहीं है कौन कौन सा चीज एक ही स्टेट के अंदर है तो वहां तो गलती करने वाला ही है, ठीक है। तो देखो तुम इससे तो एमसीक्यू बनना ही बनना है कि ये इंटरस्टेट सप्लाई है कि इंटरस्टेट सप्लाई है, ठीक है। इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि इसमें आईजीएसटी लगेगा, ये चीज तुम्हारा क्वेश्चन तो बनना ही है। फॉर एग्जांपल देखो सप्लाई ऑफ गुड्स मेड फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता कहां पर है? टू दी दुर्गापुर, दुर्गापुर कहां पे है? तो दिस इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। बोलो समझ में आया? तो दोनों ही सेम स्टेट का होगा तो क्या होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा। उसको क्या बोलेगा? देखो सप्लाई के अंदर में सेल्स इंक्लूड, हम सेल्स वर्ड यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये इतना नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई ब्रॉडर सेंस में आएगा, सिर्फ सेल्स नहीं, लेकिन सेल्स इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई। 90% केस में तुम लोग सेल्स, तुम लोग 11 में तुम लोग का बुक में सेल भी वर्ड यूज किया है, लेकिन हम वो सेल वर्ड नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ओके देखो এবার নেক্সট টপিক হচ্ছে ইন্টার স্টেট সাপ্লাই। ইন্টার স্টেট সাপ্লাই কাকে বলা হয়? তো ইন্টার স্টেট সাপ্লাই মিন্স সাপ্লাই অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস অর বোথ টু অ্যানাদার স্টেট। ইন্ট্রা স্টেটে কি বলেছিল? উইদিন দি স্টেট, আর ইন্টার স্টেট বলছে অ্যানাদার স্টেট। এমনি সাপ্লাই অফ গুডস মেড ফ্রম কলকাতা, কলকাতা কোথায় কোন স্টেটের মধ্যে আছে? ওয়েস্ট বেঙ্গল। টু দি লখনউ, লখনউ কোন স্টেটের মধ্যে পড়ে? ইউপি, ঠিক আছে। তো তাহলে এটা একটা আলাদা, এটা একটা স্টেট, এটা একটা ডিফারেন্ট স্টেট। যখন টু ডিফারেন্ট স্টেটের মধ্যে সাপ্লাই হচ্ছে তখন কি বলছে? ওই দেন ইট ইজ অ্যান इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर माने होता है दूसरा स्टेट, इंटर कास्ट मैरिज में क्या होता है? अपना कास्ट की दूसरे कास्ट से शादी, दूसरा कास्ट से शादी। तो उसी तरह इंटर वर्ड का मतलब सपोज होता है विदिन, विदिन इंटर नहीं, इंटर में आईएनटी या इंटर स्टेट माने होता है, और इंटर स्कूल कंपटीशन माने तो अपना स्कूल से कंपटीशन है, दूसरा स्कूल से कंपटीशन। तो इंटर वर्ड से याद रखना दूसरा स्टेट, ओके। तो एन इंटर स्टेट सप्लाई। দেখো আমরা এর আগেতে যেহেতু ট্যাক্সের মধ্যে আমরা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম কি তোমাদের তিন ধরনের বেসিক্যালি তোমার ট্যাক্সের জিএসটি হতে একটা সেন্ট্রাল গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স, স্টেট গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স, আর ইন্টিগ্রেটেড গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স, যাকে আইজিএসটি বলা হয়। সেন্ট্রাল স্টেট গুডসের জায়গা ইউটি কখন ইউজ হয়? যখন স্টেটের জায়গা ডেস্টিনেশন তোমার হচ্ছে ইউনিয়ন টেরিটরি। ইউনিয়ন টেরিটরি যেমনি যেটা রাষ্ট্রশাসন যেখানটা আছে, যেমনি হচ্ছে সেখানে নিজের বিধানসভা নেই, ঠিক আছে। ইউনিয়ন টেরিটরি গুলো ওইদিকে যদি হচ্ছে পন্ডিচেরি, পন্ডিচেরিতে গুড সাপ্লাই হচ্ছে তখন তো ইউটি জিএসটি লাগবে, কেন ডেস্টিনেশন বেসড। আর ইউনিয়ন টেরিটরির মধ্যে তাহলে তো ওইটা স্টেটই নেই, স্টেট ওয়ার্ডটা ইউজ হবে স্টেট। যেমনি কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে পড়ে আর লখনউ ইউপিতে পড়ে, দুটো একটা স্টেট আছে। তাহলে এটার মধ্যে যদি কলকাতা থেকে যায় ইউপিতে তখন কি চার্জ হবে? আইজিএসটি, দুটো ডিফারেন্ট স্টেট। কিন্তু ইউপি থেকে ইউপিতে তো হলে স্টেট, কলকাতা থেকে কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে দুর্গাপুর, বর্ধমান এদিকে হলে দুটোই তো সেম স্টেট, তখন এসজিএসটি আর সিজিএসটি চার্জ হবে। এসজিএসটি ওয়ার্ডটা ইউজ হবে কেন কি স্টেট আছে, কিন্তু পন্ডিচেরি তো স্টেট নেই, ঠিক আছে। তো ওটা ইউনিয়ন টেরিটরি। এবার যার জিকে নেই তারা গিয়ে ইউনিয়ন টেরিটরি গুলো করবে, ঠিক আছে। তো এবার দেখো CGST and SGST charge on intrastate. Intrastate মানে within the state. Intra মানে within the state. যদি within the state যদি সাপ্লাই চলছে, মাল ট্রান্সফার হচ্ছে one within a state, তখন কি হবে? CGST as a ভাবো 12% আছে, তাহলে 6% CGST চার্জ হবে, 6% SGST চার্জ হবে on taxable value. On taxable value. Taxable value কাকে বলা হবে? যত সেল প্রাইস মাইনাস যত ডিসকাউন্ট মাইনাস করার পরে যেটা ভ্যালু আসবে তার উপর, ঠিক আছে। তো পাবো সেল প্রাইস মাইনাস ট্রেড ডিসকাউন্ট মাইনাস ক্যাশ ডিসকাউন্ট করার পরে যেটা আসবে সেটা ট্যাক্সেবল ভ্যালু। এই ট্যাক্সেবল ভ্যালুর উপরে 6% সিজিএসটি, 6% এসজিএসটি দুটো চার্জ হবে। আমি দেখাচ্ছি অঙ্ক করেও বোঝাচ্ছি। আর ইন্টারস্টেট মানে কি? তুমি কলকাতা থেকে লখনউ মানে আউটসাইড দি স্টেট তুমি সাপ্লাই করছো, বা মুম্বাই থেকে দিল্লি আউটসাইড দি স্টেট, তখন এটা কি হবে? আউটসাইড দি স্টেট হলে আইজিএসটি চার্জ হবে। এটাকে কি বলা হয়? ইন্টিগ্রেটেড গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স। ইন্টিগ্রেটেড গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স।
এইটার মধ্যে কি হচ্ছে, সেন্ট্রাল হাফ ট্যাক্সের টাকা কালেক্ট করবে। প্রথমে তো কালেকশন সেন্ট্রাল কাছে চলে যাবে পুরো টাকাটা, কিন্তু তারপরেও কাকে দিবে, তারপরে হচ্ছে স্টেটকে, স্টেটের যত হচ্ছে সেটা, ঠিক আছে। তো এইদিকে মানে ডিভিশনটা কি হচ্ছে আইজিএসটির মধ্যেও, এইদিকে তো 50-50 ডিভিশন স্টার্টিং থেকে হয়ে গেছে, কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু প্রথমে ভাবো 12% তো 12% নিয়ে নিল, 18% তো 18%ই সেন্ট্রালের কাছে চলে গেল, তারপরে ওই স্টেটের যত জিএসটি যত হবে সেটা, এইদিকে তো স্টার্টিং থেকে ডিভিশন হয়ে গেছে। কিন্তু এইদিকে কি হচ্ছে, পরে গিয়ে পেমেন্ট যত স্টেটে যত ডিউ হচ্ছে, যত টাকা হচ্ছে, সেই যে ডেস্টিনেশন আছে যে স্টেটটা সেখানে। বলো समझ में आया? চলো দেখো, আমার সন্স অফ কলকাতা সোল্ড গুডস টু অতুল ব্রোস অফ কলকাতা, দুটোই কলকাতাতে, মানে এটা কি ধরনের সাপ্লাই, সাপ্লাই ইন্ট্রাস্টেট। কত টাকাতে, 20,000। লেস স্টেট ডিসকাউন্ট আছে 10%, সিজিএসটি এসজিএসটি আছে 6% ইচ, মানে সিজিএসটি 6%, এসজিএসটি 6%। ফাইন্ড দা ইনভয়েস ভ্যালু, মানে ফাইনাল ভ্যালু কত আছে, টাকা কত বিল অ্যামাউন্ট হবে, সিজিএসটি কত, এসজিএসটি কত তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে। আচ্ছা, সেল প্রাইস কত আছে 20,000, এইভাবে 20,000 লিখবে। সবথেকে প্রথমে ট্রেড ডিসকাউন্ট মাইনাস হয়, তো লেস ট্রেড ডিসকাউন্ট, 10%। ট্রেড ডিসকাউন্ট কত দিয়েছে, @10%, তাহলে 2,000 মাইনাস করলে কত হচ্ছে 18,000। কোনো ক্যাশ ডিসকাউন্ট আছে, নেই, তাহলে লেস সিজিএসটি @6%, সিজিএসটি 6% বের করো, এইটাকে এর উপরে সিজিএসটি চার্জ হচ্ছে, তাহলে এটাকে ট্যাক্সেবল ভ্যালু বলবো। ট্যাক্সেবল ভ্যালু ওইটা হচ্ছে, যদি ট্যাক্সেবল ভ্যালু জিজ্ঞেস করে যার উপরে ট্যাক্স চার্জ হচ্ছে তাকে বলা হয় ট্যাক্সেবল ভ্যালু। তাহলে 18,000 এর 6% কত হচ্ছে 1080, ঠিক আছে। তো লেস এসজিএসটি, দুটোই ট্যাক্সেবল ভ্যালুর উপরে চার্জ হবে, এটা নাকি এটাকে অ্যাড করে তারপর নতুন ভ্যালু, দুটোই কি সিজিএসটি আর এসজিএসটি দুটোই ট্যাক্সেবল ভ্যালুর উপরে চার্জ হবে। তো আবার 1080, দুটো সবসময় সেম থাকবে, দুটোকে যোগ করো, যোগ করে কত হচ্ছে, সরি এটাকে 2160 ট্যাক্স করলে তো ভ্যালু বাড়বে, তো 2160 होगा, 20,160, 18,000 से 2,000 जोड़ेगा तो 20,000 ना। हाँ तो ये हो गया तुम्हारा इनवॉइस वैल्यू, इतना रुपए का तुम्हारा बिल बना, तुमसे कितना मांगेगा, यानी ये जो अमर ब्रोस है वो कि अतुल ब्रोस से कितना रुपया मांगेगा, 20,160 रुपीस। ओके, ये बिल अमाउंट है। बोलो समझ में आया? अब देखो इसको हम घुमा दे, अगर इसको तुम लोग बाद में उतार लेना, ठीक है, वीडियो से। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा इजी कर दे, दूसरा चेंज कर देते हैं इसी क्वेश्चन में, कि ये जो अतुल है ये कोलकाता का नहीं है, ये है सोचो लखनऊ का। चलो लखनऊ से लखनऊ होता है, लखनऊ से, ठीक है। तो और सीजीएसटी एसजीएसटी का जगह आईजीएसटी तब चार्ज होगा, और रेट ऑफ आईजीएसटी 12% है, आईजीएसटी @12%, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवॉइस वैल्यू और आईजीएसटी वैल्यू, तो कैसे निकालोगे, तो प्रोसेस 1 तो सेम है, सेल प्राइस कितना था 20,000, लेस स्टेट डिस्काउंट 2,000, टैक्सेबल वैल्यू मिल गया। अब उसके साथ ऐड करना है, टैक्स ऐड होता है, ऐड क्या हो रहा है, सेल का है ना, तो आईजीएसटी इंटर स्टेट है ना, दूसरा स्टेट में है ना, तो आईजीएसटी चार्ज होगा @12%, तो कितना होना देखो 2160, 12% करो 18,000 का, 2160 चलो तो टोटल जोड़ोगे तो 20,160, ये हो गया उसका इनवॉइस वैल्यू। ओके, তাহলে জিএসটি জিজ্ঞেস করলে, যদি এমসিকিউ তে জিএসটি জিজ্ঞেস করে তো এই পোরশনটা, আর যদি বলে ইনভয়েস ভ্যালু তাহলে এই পোরশনটা आंसर হবে, আর যদি ট্যাক্সেবল ভ্যালু তাহলে এইটা आंसर হবে। তিনটের মধ্যে কোনো একটা তোমার মাথায় তোমাকে মনে রাখতে হবে, ওয়ার্ডটা বলবে সেল প্রাইস লেস স্টেট ডিসকাউন্ট বা ক্যাশ ডিসকাউন্ট, দুটো যদি থাকে দুটোকে মাইনাস করার পরে তুমি ট্যাক্সেবল ভ্যালু পাচ্ছ, যার উপরে ট্যাক্স চার্জ হয়, তারপরে ট্যাক্স চার্জ করবে, অ্যাড করার পরে ট্যাক্স অ্যাড করার পরে যেটা হবে সেটা কি বলবো, ইনভয়েস ভ্যালু, ঠিক আছে। তো মানে বিলিং অ্যামাউন্ট ওইটাই হচ্ছে, বিলিং ভ্যালু বলো ইনভয়েস ভ্যালু বলো, এটা হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এইটার উপরে বিল তৈরি হবে। চলো।